ایک بھائی نے ہم سے یہ پوچھا ہے ابھی کہ حضرت آپ بار بار جو کہتے ہیں کہ اللہ سے، ایشور سے عافیت مانگیے، یہ عافیت کیا چیز ہے؟ اس کو ہمیں بیان کیجئے اور ہمیں بتلائیے کہ عافیت کیا چیز ہے۔ تو میں بتاؤں آپ کو بھائی، عافیت کیا ہے؟ عافیت زندگی کا سکون اور راحت ہے۔ یعنی کہ زندگی کے اندر آپ کے دولت ہے، مال دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کاروبار ہے، لیکن عافیت اگر نہیں ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس صحت ہے، پیسہ بھی ہے، بنگلہ گاڑی ہے، لیکن آپ کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، آپ بہت سی رب کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتے، کوئی اور بیماری لگ گئی ہے، آپ رب کی بہت سی نعمتوں کو یوز نہیں کر سکتے، آپ کو سکون نہیں ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، کوئی بڑے سے بڑے مقدمے میں گھر گئے ہیں، کسی قید خانے میں چلے گئے ہیں، جیل میں چلے گئے ہیں، یا کوئی اور ایسی پریشانی آپ کی کو لاحق ہے جس کی وجہ سے آپ کو چین سکون نہیں ملتا، راتوں کو نیند اڑ گئی ہے، ہر وقت اسی کی ٹینشن میں رہتے ہیں، یہ بے چینی، بے راحتی، بے سکونی میرے بھائی مال دولت کے ہوتے ہوئے، مال دولت کے ہوتے ہوئے یہ بے سکونی اور بے قراری، طبیعت کا نہ لگنا، ہر وقت بے چین رہنا، دل کو سکون نہ پانا، یہ کیا ہے؟ اگر عافیت نہیں ہے یعنی چین سکون نہیں ہے تو بیکار ہے سب۔ جب دولت کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے، بنگلے کے ہوتے ہوئے، گاڑی کے ہوتے ہوئے آپ چین سے زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، آپ کو سکون نہیں مل پا رہا ہے، رات دن ٹینشنوں میں آپ مبتلا ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو وہ بنگلہ، وہ گاڑی اور وہ مال دولت کس کام کا پھر بتائیں آپ؟ تو اسی کو اسلام کے جو بانی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے دوست، اپنے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، اے ابو بکر عافیت مانگا کرو۔ اللہ کے نبی نے، محمد جی نے کیا فرمایا اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، ابو بکر سے کہ اے ابو بکر اللہ سے، ایشور سے عافیت مانگو، یعنی چین سکون مانگو، تھوڑا ہو لیکن زندگی میں سکون ہو، کوئی غم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو، ٹینشن میں زندگی مبتلا نہ ہو، تھوڑا ہو لیکن پرسکون زندگی ہو، راحت و سکون آپ کی زندگی میں ہو، اللہ سے یہ مانگو۔ عافیت کے معنی آتے ہیں سکون، راحت، زندگی کا چین۔ اللہ سے یہ مانگو کہ اے اللہ، آپ نے پھر وہ کلمات سکھایا ابو بکر کو، اے ابو بکر یہ پڑھا کرو، ان کلمات کو پڑھا کرو۔ کیا ہے وہ؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، اے ایشور، میں تجھ سے دنیا اور آخرت یعنی دنیا سے جانے کے بعد دونوں جگہ سکون چاہتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں، راحت چاہتا ہوں، یعنی جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں تو مجھے یہاں بھی سکون عطا فرما، چین عطا فرما، اور جب دنیا سے چلا جاؤں تو وہاں بھی میری آتما کو سکون و چین عطا فرمانا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ اگر دنیا کے اندر تمام نعمتیں مل گئی اور چین سکون نہیں ملتا تو پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، یہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔
दुनिया में बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी रहती ही है, लेकिन आखिरत में इस वजह से उसकी आखिरत खराब होती है कि जब इंसान दुनिया के अंदर बेचैन, बेसुकून रहता है तो वो नेकी और भलाई के काम भी नहीं कर पाता, अपने ही कामों में, अपने ही उलझनों में, अपनी ही परेशानियों में रात दिन लगा रहता है। किसी की कोई हमदर्दी, किसी की कोई हेल्प, किसी की कोई मदद, जानी मानी कुछ नहीं कर पाता इंसान टेंशनों में। इसलिए उसकी दुनिया के साथ साथ आखिरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए मेरे भाई, जिन भाई ने मुझसे ये पूछा है कि आफियत क्या चीज है, आपको पता चल गया होगा। आफियत के माने है, मीनिंग है सुकून, राहत, चैन। ए अल्लाह, ए ईश्वर, हमें दुनिया में भी चैन सुकून अता फरमा और आखिरत में भी चैन सुकून अता फरमा। देखो मेरे भाई, बहुत से लोग कह देते हैं, बहुत सी हमारी माताएं और दीदी बहनें कह देती हैं कि हजरत पैसे के बगैर सुकून नहीं। देखिए ये बात मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादा पैसे के बगैर नहीं, ये गलत है आपका कहना। हाँ, अगर जरूरत की गुजारने के लिए आपके पास पैसा है तो फिर आपको सुकून मिल सकता है, अल्लाह से आप दुआ कीजिए। लेकिन आप ये कहें कि जी ज्यादा ही पैसा है जब सुकून मिले, ये कोई गारंटी नहीं। ज्यादा पैसे आने के बाद अल्लाह ना करे आप किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए, किसी हादसा में मुब्तला हो जाए, बेचैनी, बेकरारी रहे। हमने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है कि पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जिंदगी तबाह हो बर्बाद है। इसलिए मेरे भाई, पैसे के लिए आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन उसकी मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत दिल में मत आने दीजिए, बल्कि अल्लाह से, ईश्वर से ये कहिए, ए अल्लाह, ए मेरे ईश्वर, ए मेरे खालिक, ए मेरे माबूद, ए मेरे पैदा करने वाले, मुझे सुकून अता फरमा। मुझे थोड़ी रोजी के बावजूद, थोड़ा सा पैसा होने के बावजूद मैं इस पर ही खुश हूं जो भी आप अता करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप मुझे चैन और सुकून अता फरमा। मेरी औलाद को चैन सुकून अता फरमा, मेरे घराने को, मेरे खानदान को, मेरे मुल्क वालों को चैन और सुकून अता फरमा। मेरे भाई, आपने देखा होगा कैसे लड़ाइयां चल रही है बाहर मुल्कों के अंदर, हमारा इंडिया में बड़ा सुकून राहत है। अल्लाह ताला ऐसे ही सुकून अता फरमाए हर इंसान को, दुनिया में रहने वाले को, कि देखिए थोड़ा है लेकिन सुकून की जिंदगी है। वहां पे तो मेरे भाई माल दौलत वाले हैं, लेकिन वो चैन सुकून नहीं, 2 टाइम का खाना सही समय से नहीं हो रहा, जान बचाना मुश्किल पड़ रही है, दौलत होने के बावजूद बेसुकूनी, बेराहती है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर से, अल्लाह से आफियत की दुआ मांगो, आफियत चाहो, आफियत मांगो कि ए अल्लाह, ए ईश्वर, हमें आफियत अता फरमा, सुकून अता फरमा, और हमारे साथ साथ हमारी औलाद को भी सुकून अता फरमा, चैन अता फरमा, और हमारी औलाद के साथ हमारे शहर वालों को, हमारे मुल्क के एक एक बाशिंदे को, हमारे मुल्क के हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर दरिंद परिंद, नबातात, जमातात, तमाम मखलूक जितनी रहने वाली है, ए अल्लाह, सबको चैन और सुकून अता फरमा। इससे बड़ी भाई कोई नेमत नहीं। इसलिए दुआ करनी चाहिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। थोड़ा भी होगा तो चैन से जिंदगी गुजरेगी, और थोड़ी में भी बहुत सी अल्लाह की नेमतों को आप इंजॉय कर लेंगे। लेकिन बहुत होने के बाद भी अगर परेशानियां हो, बेचैनियां हो, जिंदगी में सुकून ना हो, बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो अल्लाह की नेमतों को ना इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ना यूज कर सकते हैं, और ना आपको सुकून मिल सकता है जिंदगी में। इसलिए प्यारे नबी, इस्लाम के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से अपने दोस्त, अपने यार हजरत अबू बकर से फरमाया, अबू बकर, अल्लाह से, ईश्वर से आफियत मांगो। ये बहुत बड़ी नियमत है। देखिए, जब आफियत और सुकून मांगते हैं तो हर चीज उसके अंदर आ जाती है।
क्योंकि जब अल्लाह से आप कहेंगे कि अल्लाह मुझे सुकून अता फरमा, मेरी औलाद को सुकून अता फरमा, मुझे अता फरमा, मेरे खानदान वालों को, मेरे मोहल्ले वालों को, मेरे शहर वालों को, मेरे मुल्क के हर बाशिंदे को, यहाँ तक कि जानवर को भी सुकून अता फरमा, तो मेरे भाई अब तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दौलत दे और ये दे, हमें ये दे। क्यों कि जो जो सुकून की चीजें जो जो सुकून की चीजें होंगी, जिनसे आपको सुकून मिल सकता है, अल्लाह ताला ईश्वर खुद ही उन चीजों का आपके लिए इंतजाम कर देगा। क्योंकि सारी चीजें इस दुआ के अंदर आ गई कि अल्लाह हमें सुकून अता फरमा। कैसे सुकून तू देगा हमें पता नहीं, तो वो खुद ही जिन चीजों से आपको सुकून मिलेगा दुनिया के अंदर और आखिरत में, वो रब खुद ही मुहैया कर देगा, खुद ही उन चीजों का इंतजाम कर देगा आपके लिए। इसलिए प्यारे आका ने इस्लाम के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई अपने खास दोस्त, अपने जिगरी दोस्त अबू बकर को, है कि अबू बकर ये दुआ किया करो, अल्लाह से, ईश्वर से ये मांगा करो। देखिए जो लोग आफियत मांगते हैं मेरे भाई, सारी जिंदगी की परेशानियां उनकी दूर हो जाती है, आफियत में हर चीज आ जाती है। जिंदगी की कठिनाइयां, आने वाली परेशानियां, उलझने, दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। बस अल्लाह से कहें अल्लाह आफियत अता फरमा, चैन सुकून अता फरमा। हर चीज दुनिया की जो आपको सुकून पहुंचा सकती है, आपकी औलाद हो, आपके पास चौपाई हो, दरिंद परिंदे हो, या कोई मोहल्ले वाले हो, या खाने पीने का कोई आइटम हो, हर चीज अल्लाह आपके लिए मुहैया कर देगा जिससे आपको सुकून मिलता होगा। बस आप ये दुआ क्या कर, ए अल्लाह, ए ईश्वर, हमें सुकून अता फरमा, और आपके सिवा कोई सुकून देने वाला नहीं। अगर आप चाहें कि सुकून ना मिले तो फिर दुनिया में कोई इज्जत सुकून नहीं दे सकता। आप ही दे सकते हैं, आप ही जानते हैं कि हमें सुकून कैसे मिल सकता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए हर वो चीज मुहैया कर देगा, पैदा कर देगा, उसके जराए और वसीले बना देगा जिससे आप सुकून से रहेंगे। अल्लाह मुझे भी, ईश्वर मुझे और हमारे तमाम मुल्क के बाशिंदों को, तमाम व्यक्तियों को, तमाम इंसानों को, माँ बहनों को, दीदी और भाई बहनों को, सबको अल्लाह ताला ईश्वर सुकून अता फरमाए, आपस में मोहब्बत अता फरमाए, इत्तिफाक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।